Good evening, everyone. Yes. Good evening, beta. And I hope you can hear my sound properly, clearly, right? Okay, right. Thanks for the response. Uh, as we know that we are into an aptitude class, which is very important in terms of uh, any examination, not only GATE, of course, we're preparing for GATE. So focusing on GATE, it is also as important. But for any examination, starting from very low level examinations to high profile examinations like UPSC or GATE or CAT would include the aptitude stuff. And what we are trying to do here is trying to cover all kind of questions, and it also helps you in your campus recruitment training as well. So any company that comes under your campus to hire you, वो भी आपका aptitude examination ही लेते हैं, and these topics will also these topics will be there, nothing else would be there, right? So साथ साथ में सारी आपकी preparation हो रही है. So few basic instructions: do not start your videos. Even I haven't started my video, that would disturb everyone. So the important part is the stuff that I show you and what I say. Next thing is make proper notes. पेन और पेपर लेके बैठना, ऐसे मूवी देख रहे हो वैसे आप लेक्चर अटेंड नहीं करना है बेटा, ठीक है? यू अंडरस्टैंड? All right, so now what we do here is we start the aptitude class by the one of the very understanding concept, that is percentage. And in percentage, apart from the basic percentages, let's get into the stuff of percentage increase and decrease, or more or less, everything which is called percentage change, everything which is called percentage change. And this is one of the most important part of the percentage, right? Why so? Because majority of the questions that we have seen appearing in the examination from core percentage are from this part, that is percentage change. So any example which that includes increase, decrease, more or less, all these are called percentage change examples. Right? Chali. So now let's start. My name is Harsh. I teach quantitative aptitude. I'm also an engineer just like you guys, right? चलिए start करते हैं. Not wasting much of time. Let's end the topic today. Percentage stuff आज हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम उसकी high end applications में जाएंगे, that is profit and loss. लेकिन आज हम percentage का core खत्म करेंगे, ठीक है? चल. So of course 80 से 20 गए हम, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 20%. क्वाइट सिंपल. वैसे ही 120 से 100 आए तो 20% डिक्रीज हुआ, ठीक है? वैसे ही अगर मैं देखूं कि 100 से 120 गया तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? 20%, राइट? एंड 140 से 120 आया तो अगेन 20% डिक्रीज, राइट? सो ये सारी बेसिक चीजें हमें पता है, बट व्हाट अबाउट द प्रॉपर इक्वेशन और द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज, राइट? फोकस करते हैं, लिखना नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा. What is the formula for percentage change? This is the formula for percentage change. Let's say this is the initial value. As we understand, initial value is the value from where we start. This is the final value where we end.
So this is your initial value, this is your final value. We were on this value, we have gained this value. So this is a definite increase. This is a definite increase, but by what percentage? That we can find by this formula. That we can find by this formula. So how do we find? Final value minus initial value. मतलब ultimately वो कह रहा है ना, इसका जो difference है ना वो. So numerator में आएगा इसका difference, that is difference और change in value. Denominator में क्या आएगा? Initial value, that is this. For this example, this for second, this for third, this for fourth. Denominator में सबसे important चीज ये है कि denominator में हमेशा आता है initial value. I repeat, और फिर से 2 बार मैं रिपीट करूंगा, डिनोमिनेटर में हमेशा आएगा इनिशियल वैल्यू, बिकॉज परसेंटेज हमेशा इनिशियल वैल्यू पे फाइंड किया जाता है. दिस इज द कॉमन एंड सेंसिटिव मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू, राइट. तो हमेशा याद रखना, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जब आप फाइंड करते हैं तो वो हमेशा इनिशियल वैल्यू पे फाइंड किया जाता है. ठीक है, और इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है डिनोमिनेटर में आएगा इनिशियल वैल्यू. अच्छा, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन बेटा, इज माय वॉइस क्लियर? रिप्लाई मी क्विकली. ओके, सो तीर्थ, apart from you everyone has replied me yes, so I think there is an issue at your end. हाँ, तीर्थ की बात कर रहा हूँ बेटा. So apart from you everyone has replied me yes, so there is an issue at your end, so kindly check the network connection on your side or quickly leave the meeting and join back again. That might solve the issue if that doesn't solve, right? So ऐसा नॉर्मली होता है बेटा, क्योंकि बाकी सारे बच्चों ने मुझे yes रिप्लाई किया है कि उनको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है. ठीक है, so exactly, अब ना हम फिर से टॉपिक पे आते हैं. I'm sorry for the disturbance. So अगर हम फिर से हम टॉपिक पे आता है, टॉपिक क्या कहता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, राइट. सो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 20. 20 अपॉन 80. देखो यहाँ पे 20 अपॉन फाइनल इनिशियल वैल्यू, दैट इज 80. सो दैट इज 1/4 and 1/4 is 25%. 1/4 is 25%. This is wrong. 25 is correct. 25 is correct. ऐसे ही आप मुझे बाकी के 3 सही है या गलत है वो चेक करके दिखाओ जरा. राइट, वेरी गुड. सो पीपल आर आंसरिंग मी के सर ये गलत है, ये सही है. वेरी गुड. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सी, बिकॉज लुक एट द फर्स्ट साइट आपको ये चारों आंसर सही लगे थे, है ना? एट द फर्स्ट साइट यू फेल्ट कि ये चारों आंसर सही थे. लुक हियर, द फर्स्ट इज इनकरेक्ट एज वी ऑल डिस्कस्ड, लेकिन सही आंसर है उसका 25. सेकंड ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि उसका सही आंसर है 16.66. third is the only thing which is correct. Fourth is also incorrect because उसका सही आंसर है 14.28. राइट, यहाँ पे आपको हमेशा देखना था ये जो चारों जगह पे 20 आ रहा है ना, ध्यान से देखना 1 मिनट के लिए बेटा, स्टॉप कैलकुलेटिंग. ये चारों जगह पे जो न्यूमेरेटर में 20 आ रहा है ना, वो चारों के चारों हमने 20 यहाँ लिख लिया था, जो कि बिल्कुल गलत बात है. हमने सिर्फ क्या कंसिडर किया था? चेंज इन वैल्यू. हमने सिर्फ क्या कंसिडर किया था? चेंज इन वैल्यू, विच इज रॉन्ग. right, what you should do is change in value upon initial value into 100. That's what gives you percentage change. That's what gives you
परसेंटेज चेंज, राइट? सो अगेन डिनोमिनेटर में जब हमने इनिशियल वैल्यूज डाले तब हमें सही परसेंटेज चेंजेस मिले। सो यहां से हमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि you will have to always find your percentage change with respect to initial value, with respect to initial value. Am I clear till this point? Yes or no? सबको समझ आ गया बेटा? Kindly reply. Because this is very important formula, बहुत basic formula है, लेकिन हर जगह पे ये आएगा, है ना? जितने क्वेश्चंस इसके बाद हम करेंगे ना, हर जगह पे कहीं ना कहीं इससे रिलेट होगा चीज, ठीक है? So always remember, you will have to find your percentage changes with respect to your initial value. Great. I'm keeping this slide in front of you for 20 seconds only. Write it down, the formula, the way I have written. That is decrease. पूजन चेंज अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली फिर वो डिक्रीज है ना? तो मैंने वो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू दोनों नहीं लिखा आपको कंफ्यूज करने के लिए। ऑफ कोर्स वो आपको दिखेगा ना कि डिक्रीज है या इंक्रीज है। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज परसेंटेज वी आर फाइंडिंग हियर। ऑलराइट पूजन? ऑलराइट, वन वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर वी गेट इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। यार हमारा लेक्चर 5:30 को होता है। यू नीड टू ज्वाइन द क्लास बिफोर 5:30, otherwise I'll keep on have to adding you guys because waiting room enable का option अब नहीं visible हो रहा है इसलिए। So I request you to join at least at 5:29, ठीक है? So that I don't have to keep on joining you guys, ठीक है? I have to keep on pressing admit. So हो सकता है कि आपका कुछ important चीज छूट जाएगा अगर next lecture से अगर आप ऐसा करेंगे तो। I hope I have made my point pretty clear. Kindly join before 5:30, at least 1 minute before that, right? It doesn't take much of your time. कितना जो टाइम बचा लोगे आप? आप करीब करीब आपके 40 बच्चों में से 35 या 34 बच्चों ने 5:31 5:32 को ज्वाइन किया है, ठीक है? सो 1-2 मिनट बचा के क्या कर लोगे यार? ट्राई टू ज्वाइन एट 5:29, ठीक है? सो दैट just before I start the class. Anyways, let's go further. फाइंड परसेंटेज चेंजेस। मैंने IVFP दे रखा है आपको, थोड़ा फटाफट परसेंटेज चेंज फाइंड कर लो। आंसर नहीं देना है आपको, हम सारे आंसर साथ में डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 9 परसेंटेज चेंजेस, आई एम गिविंग यू ओनली 3 minutes। The 9 percentage changes, I am giving you only 3 minutes. Don't answer me until I ask. We'll be discussing all answers together.
ऑल डन? राइट, आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट एट ऑल. हमें सिर्फ डिस्कस करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. व्हाट इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन का आंसर इज यस, एग्जैक्टली, दैट इज 66.66%. वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन का आंसर, that's 33.33, fair enough. 30 upon 120, 30 upon 90, I'm sorry. Right, next one, 25. Yes, so 25% decrease rather than minus, you can simply say 25% decrease. और मैंने भी आपको change को बोला था, so let it be increase or decrease, that is 25%. Next, no, it's not 90, no, it's not 11.11, it is 900%. Exactly, it is 900. So initial value से ही आपको देखना होगा. The total increase or the proper increase is 81 upon initial value, that is 9, so that is 900%. Right, next, no, it's not 75, no, it's 400, no, it's not 400, no, it's not 30, it is 300%. बहुत से लोग गलत आंसर दे रहे हो बेटा. सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 1 to 4 difference is 3 upon initial value, that is 1 into 100, that's it. 300% increase. Right, next is again 900%. exactly, initial value आएगा नीचे, ऐसा हमेशा याद रखो. You will always have initial value in the denominator. Next is only 2%. Very good. 500 to 510, that is 10 over 500, that is only 2%. Next, 100% decrease, है ना? जितनी वैल्यू थी वो बेचारी जीरो हो गई, so that is 100% decrease. And the last, हाँ, very good. 100 आंसर नहीं आएगा बेटा, ठीक है? Don't say 100 is the answer. Very good. Few people have answered it correctly. Either it is infinite or not defined. Right, that is 0 to 4. तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा. किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करने का मतलब होता है उस वैल्यू को 1 से ज्यादा किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना. ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है? किसी वैल्यू को इंक्रीज करने का मतलब होता है उस वैल्यू को 1 से ज्यादा किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना. सो 1 से ज्यादा किसी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई जीरो को करोगे तो जीरो का जीरो ही रहेगा. सो इट कैन नॉट रीच एनीवेयर, बट इट हैज रीच्ड हियर, सो दैट मींस दिस इज नॉट डिफाइंड इंक्रीज. राइट, सो दिस वाज क्वाइट सिंपल. आगे बढ़ते हैं. हम मैंने आपको यहाँ पे जो भी दिखाया ना, वो अब तक क्या देखा हमने? सो व्हाट डिड आई गिव यू? मैंने आपको इनिशियल वैल्यू दिया, फिर मैंने आपको फाइनल वैल्यू दिया और पूछा कि परसेंटेज चेंज क्या है. राइट, अब हम जाते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के कॉन्सेप्ट में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. और इस फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट सॉल्व करने होंगे. बताओ आंसर क्या आएगा? ऑल द धोनी फैंस इन द हाउस. यहाँ पे have I given you initial value or final value? Because it is clearly shown that I have given you percentage change. But मैंने आपको initial value दे रखा है या final value दे रखा है? और मैंने आपको क्या पूछा है, मतलब क्या ढूंढने को बोला है?
ओके सो मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेटली इनिशियल वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और फाइनल वैल्यू ढूंढने को बोला है. आई हैव गिवन यू द परसेंटेज चेंज एज वेल, दैट इज 30%. इट इज क्वाइट क्लियर. ये जो आपको दिया है वो है आपका इनिशियल वैल्यू, ये आपको जो दिया है वो है आपका परसेंटेज चेंज, और मैंने आपको पूछा है कि फाइनल वैल्यू क्या होगा. तो अगर इक्वेशन यूज करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? Do we really need to use this equation? No, it is quite, it will be quite लेंदी, राइट. सो बड़ा सिंपल तरीका है ना. आपको बेसिकली क्या पूछा है कि पहले इनिंग में उसने स्कोर किया 80 रन, सेकेंड इनिंग में उसने 30% मोर रन स्कोर किए. सो 80 में 30% मोर, यानी कि 80 में 80 का 30% हम ऐड करेंगे, सीधी बात है. 80 में कुछ, लेकिन क्या ऐड करेंगे? 80 का ही 30%, 80 का 30% हम ऐड करेंगे. सो 80 प्लस 24 104. दिस लुक्स क्वाइट बेसिक कि सर ये बहुत इजी है, ऑफ कोर्स, लेकिन हम इसलिए ये समझ रहे हैं ना ताकि आगे जाके हम एमएफ का फंडा समझ सके. एमएफ इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर. सिमिलरली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? Yes, exactly. So this time it will be minus. Sorry. So this time it will be minus, that is 120 minus 60% of 120, that is 72. That will give you 48 runs. So this is quite simple till now. यहाँ तक बहुत confusion बिल्कुल भी नहीं है. It is just simple कि आपको ऐड करना है तो initial value आपको दी हुई है ना, so it becomes too easy for you. आपको इनिशियल वैल्यू के परसेंटेज निकालने हैं, उसको इधर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एज पर द रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन. बट व्हाट इफ वी आर आस्क्ड समथिंग लाइक दिस? इसमें क्या आंसर आएगा? yes, so यश एक बार देखो बेटा ध्यान से क्या गलती की है आपने. बाकी बहुत से लोगों का आंसर सही आ रहा है मुझे. तो kindly check the mistake that you have made by giving this answer. Dhoni scored 126 runs in second innings of the match, which was 40% more than the first inning score, which we don't know. In the first inning score क्या था, लेकिन उसका 40% ज्यादा था. That was 126. So yes, so is it correct answer? I mean 126 में से 126 का 40% हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. Is it correct? 75.6. Can we do this? And if no, then why we cannot do this? Very good, Nihar. Yes, fair explanation. Just because, yes, exactly. Bhagirath, Hiren,
Prashant, good. Correct answers. I mean, because the most important thing that I am quite shouting literally that हमेशा percentage change आप किस वैल्यू का फाइंड करते हो? इनिशियल वैल्यू. यहाँ पे जो 126 दिया गया है बेटा, ये 126 आपका सेकेंड इनिंग्स का स्कोर है, which is 40% more than first innings. More than फर्स्ट इनिंग्स, यानी आपकी इनिशियल वैल्यू तो फर्स्ट इनिंग्स है जिसका परसेंटेज चेंज फाइंड किया जाना चाहिए. तो आप 126 का 40% ढूंढ ही नहीं सकते. दिस इज रॉन्ग. सो क्या कर सकते थे आप इसमें? यू कुड हैव थॉट समथिंग लाइक दिस. सर, हम मान लेते हैं कि धोनी ने फर्स्ट इनिंग में एक्स रन स्कोर किए थे. ठीक है, ध्यान देना एवरीवन. एक्स रन स्कोर किए थे, उसमें उसने 40% रन ज्यादा स्कोर किए सेकंड इनिंग्स में. 40% ज्यादा किसके? एक्स के, जिसकी वजह से सेकंड इनिंग्स में उसका स्कोर हो गया 126. यहां से आपको एक्स ढूंढना होगा एंड दैट विल बी 90 runs. And that will be 90 runs. And that's your correct answer. Fair enough. I received few correct answers, but not all. So I was expecting कि इस क्वेश्चन का आंसर सबका सही आना चाहिए था, राइट? देखो, यहाँ पे अभी भी हम MF के तौर पे MF पे नहीं गए हैं, लेकिन ध्यान रखना MF होता क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको समझ आएगा कि हमने ये तीनों क्वेश्चंस क्यों किए. नाउ यहाँ तक क्लियर है? Yes, of course, right? Quite simple to understand. Now let's get into the next part, that is what is multiplication factor and how it will be useful. Something that we have to understand now. देखते हैं हम लोग. ठीक है? So multiplication factor concept क्या कहता है? हमने पहले क्वेश्चन में क्या था? धोनी ने पहली इनिंग में 80 रन स्कोर किए थे. ध्यान देना, धोनी ने पहली इनिंग में 80 रन स्कोर किए थे और 30% इंक्रीज था, तो हमने 30% 80 में ऐड कर दिया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये किया. अच्छा, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ, और दैट इज 80 को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा? 1 + 30/100. ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, दैट इज 80 × 130/100. और अगर फाइनली मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो इट इज 80 × 1.3. Now look here, these all steps are not necessary. The moment you see 80 runs is your initial value, ध्यान देना, multiplied by increase of 30%. Now any value when increased will be multiplied with something more than 1. And 30% 30% shows it is 1.3. Quite simple, right? So initial value into 1.3, or here multiplication factor will give you final value. Quite simple. ठीक है? Again same thing I am explaining you. फिर से ध्यान देना, किसी भी वैल्यू को, x नाम की कोई वैल्यू है, मैं जो दिखा रहा हूं उसे ध्यान से देखना और जो मैं बोल रहा हूं वो सुनना बेटा. x नाम की कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर मुझे उतना का उतना रखना है, so I'll multiply it with 100/100. Quite simple. But if I want to increase that value, then I'll multiply it with something 100 + 100. And if I want to decrease it, then I'll multiply with something which is 100 - 100. Quite simple to understand, right? So यहाँ पे मुझे 80 को 30% इंक्रीज करना है, so ultimately मुझे उसका 130% फाइंड करना है. So 130% is 1.3. 130% is 1.3. आंसर सीधा आ जाएगा 104. ठीक है? Same way, the second question, this 1.3 is called your multiplication factor, right? So
जो चीज मैंने आपको दिखाई वही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डोंट राइट नाउ, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, वो ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर विल गिव यू फाइनल वैल्यू। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, 120 was initial value and decrease of 60%. मुझे ये बताओ, यहाँ 120 इनिशियल वैल्यू है, डाल दिया, डिक्रीज ऑफ 60% का एमएफ क्या आएगा, व्हाट विल बी द एमएफ, क्विकली रिस्पॉन्ड, कम ऑन। नो देवेन, नो नो नो, ये गलती मत करो, 0.6 बोलने की गलती मत करना, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे 0.6 बोल रहे हैं ना, ऐसा मत करो, ठीक है यार। 60% ऑफ डिक्रीज का मतलब होता है 0.4 एग्जैक्टली। किसी ने मुझे 40 बोला है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट इज 40 अपॉन 100, राइट। सो 12 इंटू 0.4, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 48। That was your answer to the second question. But look how third question becomes easy for us with this equation. Third question क्या था आपका? Sorry. हमें इनिशियल वैल्यू थर्ड क्वेश्चन में पता ही नहीं थी, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लीकेशन 40% इंक्रीज, क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 40% इंक्रीज का, क्विकली कम ऑन, 40% increase का multiplication factor would be, yes, so it is 1.4, it is increase, so 1.4 will give us final value, and that was given, that is 126. So initial value equal to 126 divided by 1.4, and that will be 90. Quite simple. That was our answer. Is it clear? Respond me with yes or no, everyone. If you have any doubt, I can explain it thoroughly again, but I hope I have explained it already in proper manner, right? So multiplication factor, a very important concept of the percentage stuff. ये तीनों एग्जांपल आप एमएफ से फटाफट लिख लो, और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी कॉपी कर लो बेटा आपकी बुक में। I am giving you 30 seconds. चलिए आगे बढ़ते हैं। So there's a table, आपके सामने टोटल 6 questions are there and you just have to answer me. जब मैं आपको आंसर पूछूं तभी बताना है, पहले सिर्फ फाइंड करके रखो। क्लियर इंस्ट्रक्शंस?
आपको सिर्फ आंसर नहीं बताना है, आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर और आंसर दोनों बताना है मुझे। लेकिन जब मैं पूछूं पहले सिर्फ आपकी बुक में लिख के रखो, ठीक है? 6 questions giving you only 2.5 minutes, not more than that. All right, I hope it's done. राइट, चलिए फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर विथ एमएफ बोथ। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर एंड एमएफ। Yes, exactly. Multiplication factor of 60% increase is 1.6, which is multiplied by initial value, and that will give you 4800. Second question, 20% decrease. Yes, very good. So 0.8 multiplied by 800, and that will give you 640. Next question, 1.25, but this time exactly it will be divided by 37,500, and that will give you 30,000. Very good, correct answers guys. Nihar, Utsav, Jainik, Harshangi, Viraj, good. ठीक है, I am not naming everyone because वो फटाफट आंसर आ रहा है इसलिए. Next question, 45% decrease, 0.55, really very good, but that should be divided by 1100, and that will give you 2000. Exactly. Second last question, it shouldn't be 1.5, right? हाँ, तो कुछ बच्चों ने ये मिस्टेक की है. It must be 1.05, that is multiplied by 700, that will give you 735. And the last question, 0.05, yes, 0.05, but divided by 8.5, giving you 170. Excellent, good.
Now I think you have also understood the concept of MF clearly and how it will be very useful to you guys when these kind of questions appear in front of you, right? चलिए, तो आई डोंट थिंक इसमें कहीं पे किसी को डाउट है, अगर है तो आई एम कीपिंग दिस टेबल इन फ्रंट ऑफ यू फॉर 10 सेकंड्स ओनली। जो आंसर आपका गलत हुआ है या जो एमएफ आपका गलत हुआ है अभी कॉपी कर लो बेटा, फिर हम लास्ट में डाउट सॉल्विंग 5-10 मिनट जो हम लेते हैं ना, 10-15 मिनट, उसमें मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है? राइट नाउ जस्ट कॉपी इट, गिविंग यू 5 सेकंड्स टू डू इट। आगे बढ़ता है। So now before we get into the example stuff, हम यहाँ पे अभी तक हमने जो MF से रिलेटेड चीजें सीखी है और एग्जाम्पल में जब थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो आती है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट स्टफ है उसका हम एक रिवीजन करते हैं। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। So whenever you see these kind of things, A is 20% of B. How you represent it mathematically? Look here, I am encircling and saying A is 20% of B. But look how this can be interpreted. A is 20% more than B. I hope you understand मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं। A is 30% less than B. Okay, again, A is 30% less than B. So the moment you read these kind of things, आपको सीधा उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन रख देना है, and then you can solve. Being an engineer हम यही करते हैं ना, एग्जाम्पल पढ़ के इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बना के इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यही तो हमारा काम होता है। So again look, A is increased by 40%. अब यहाँ important चीज देखना, what is increased? A is increased. So A is increased by 40%. To get B, again A is decreased by 30%. To get B, so A is decreased by 30% to get B. So जो वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है उसके साथ MF आएगा, ठीक है? अगेन मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग में से थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ध्यान देना। जब हमारे सामने ऐसा कोई इक्वेशन आता है A equals to 0.2B, how we can easily interpret it in two different manner. A is 20% of B, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन इसको एक और चीज हम लिख सकते हैं, है ना? 80% लेस, इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या आता है? 100 माइनस 80, 20 के हिसाब से 0.2, और वही तो है यहाँ पे। सो वी कैन ऑल्सो से A is 80% लेस देन B. 80% less than B. Again, look here. A equals to 1.2B can be interpreted in two manners. A is 120% of B, which is quite simple, and A is 20% more, because 20% more is indicated by 1.2. So write down this entire table the way I have written it, and I hope you understood it as well, right? लिख लो बेटा, I'm giving you 40 seconds. कॉपी कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
So now let's get into the example stuff, है ना? ये सारी चीजें जो हम theoretical कब से पढ़े जा रहे हैं ना, almost in last 45 minutes, ये काम कहाँ आएगी? How it will be useful for us? In what type of examples we'll be using it? अब हम देखते हैं, ध्यान देना. Now we'll be getting into many different examples. Also some theoretical concept will come, लेकिन ज़्यादा example होंगे. So first example in front of you, try करें. Look how easy it becomes. Yes, good, very good. Few of you have answered. So yes, so how this question could have been approached, right? तो अभी अभी जो मैंने आपको टेबल में दिखाया, तो उसी कॉन्सेप्ट से इसको हम अप्रोच कर सकते थे, and it was not difficult at all. A got 10% less than B. Simply I can write this: A equals to 0.9 B, because 10% less का मतलब होता है 0.9. Okay. B got 25 more, 1.25 C. C got 20 less, C equals to 0.8 D. Ultimately आपको दिया है A got 360. So A equals to 0.9 B. B की जगह डाल दिया मैंने 1.25 C. C की जगह डाल दिया मैंने 0.8 D. ठीक है, क्योंकि मुझे D ढूंढने को बोला है. मैं बीच के B और C की वैल्यू ढूंढूंगा ही क्यों. So D मुझे मिल गया 400. Now ultimately D got 400 marks out of total marks 500 which is given, and hence that is 80%. हाँ कर सकते हो पूजन, नॉट इनकरेक्ट एट ऑल, सही है. सब परसेंटेज में आएगा. तो दिस इज ऑल्सो वन मोर मेथड, राइट? चलिए, डन.
आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ट्राई करो। यस, कुंजन करेक्ट, निहार करेक्ट, ईशान नहीं बेटा इनकरेक्ट, उत्सव करेक्ट, प्रशांत करेक्ट, ऋषिकेश करेक्ट, यश करेक्ट, रिया करेक्ट, vivo 1951, if you can give me your name. Vivo 1951, this is something that's your name. Your answer is incorrect, by the way. Try again. Yes, Maharshi correct, Harsh correct, Viraj wrong, Rushabh correct, Kishan correct, very good. No, Kenil, it's incorrect. Yes, Aman correct. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. सो लेट्स गेट इनटू द सॉल्यूशन स्टफ. बाय द वे, मेरे क्लास में जितने बच्चे हैं उन सबको रिप्लाई करना तो जरूरी है यार. सब लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे, सो पकड़ पकड़ के मुझे पूछना पड़ेगा, आई गेस, है ना. आपका अगर गलत आंसर भी आता है तो यू डोंट हैव टू थिंक, यू जस्ट हैव टू रिप्लाई मी, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको क्या दिया गया है? अ स्टूडेंट स्कोर्ड 50% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जाम एंड येट फेल्ड बाय 12 मार्क्स. सो मान लेते हैं ना कि उसके मैक्सिमम मार्क्स m थे, उसने 0.5 m स्कोर किया क्योंकि 50% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज 0.5 m, एंड येट फेल्ड बाय 12 मार्क्स. सो अगर उसने 12 मार्क्स एक्स्ट्रा क्लियर किए, 12 मार्क्स एक्स्ट्रा लाए होते, इसलिए मैंने ऐड कर दिया उसमें, तो वो पास हो जाता.
So 0.5 m plus 12 is equals to passing marks. Equation number 1. Now, और एक चीज क्या दिया है उसने कि if he would have scored 10% more than what he scored. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. 10% more तो ठीक है, लेकिन then what he scored 0.5 m. So 0.5 m is something that he scored, उसका 10% ज्यादा, that is 1.1, that is 1.1, 10% more. ठीक है. So it is like again देखो 10% more, that is 1.1. Then what he scored, he actually scored 0.5 m. तो भी उसके पासिंग मार्क्स आ जाते हैं. तो ये दोनों तो सेम इक्वेशंस हो गए ना, मतलब सेम वैल्यू वाले इक्वेशंस हो गए. इन दोनों को कंपेयर करवा सकते हैं हम लोग. आंसर आ जाएगा m is equals to 240 मार्क्स. यहाँ पे मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है, आप यहाँ 1.1 0.5 की जगह m के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इसलिए आपका आंसर आता है 120, which is wrong. Your answer is 240 here. I hope it is clear now. जिन लोगों का गलत आंसर आया था बेटा वो लोग मुझे रिप्लाई करें. Is it clear now? Yes. ठीक है. So yes of course right. कुछ लोगों ने ऐसे भी सोच सका होता है कि सर अगर 10% more than what he scored है, so 0.5 m का 10% ही ये 12 मार्क्स है. वही तो ये 12 मार्क्स है ना. एग्जैक्टली वही है ये भी इक्वेशन सॉल्व करने पे यू विल गेट m इक्वल्स टू 240. देन आगे बढ़ते हैं. नाइस क्वेश्चन. बताओ क्या आएगा. हाँ तो क्वेश्चन पूछ रखा है आपको सीधा सीधा कि A's salary is 50% more than B's salary, then by what percentage B's salary is less than A's salary. तो अगर वो 50% ज्यादा है तो ये भी 50% ही कम होगा ना. नहीं गलत है. 50 का 50 आंसर नहीं आएगा ना. ठीक है. कुछ लोगों ने मुझे 50 का 50 आंसर दिया है, कुछ लोगों ने अलग आंसर भी दिया है. गुड. यस. सो यहाँ पे आई शो यू बेसिकली 3 मेथड्स. ध्यान देना. Everyone focus. I'll show basically two main methods. ध्यान देते हैं. So first method is the assumption. Quite simple. ध्यान देना. A salary is 50% more than B. तो मैं पहले किसकी सैलरी अज्यूम करूंगा. B की. B की कितनी अज्यूम कर ली हमने. 100. A's salary will be 150 क्योंकि इसकी 50% ज्यादा है A की. ठीक है. दोनों की सैलरी हमें पता चल गई 100 and 150. क्वेश्चन क्या पूछ रखा है. देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन ए सैलरी. अब क्वेश्चन समझना. एवरीवन प्लीज फोकस. कंफ्यूज नहीं होना कभी भी. इसके लिए हमेशा देखना कि क्वेश्चन में देन के बाद क्या है. अगेन आई रिपीट. क्वेश्चन में देन के बाद क्या है. देन के बाद जो चीज आपके क्वेश्चन में है, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस
देन इज सैलरी। सो देन के बाद जो होता है ना वो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है, एंड दैट विल कम इनटू डिनोमिनेटर। सो आपके पास दो वैल्यूज है 100 एंड 150। आपको पूछा है परसेंटेज लेस, परसेंटेज लेस पूछा है, मतलब आपके पास एक ही इक्वेशन है आज जो हमने सबसे पहले पढ़ा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इनटू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, दैट इज चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, 50 अपॉन इनिशियल वैल्यू। लेकिन इनिशियल वैल्यू किसको कंसीडर करें, ए को या बी को, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यू जस्ट हैव टू पुट देन के बाद जो दिया है, देन क्या दिया है, ए सैलरी। सो दैट इज 50 अपॉन 150, दैट इज 33.33। ठीक है, कुछ लोगों को डायरेक्ट पता होगा, लेकिन ये कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कैन बी लिटिल कंफ्यूजिंग समटाइम। सो ऑलवेज रिमेंबर देन के बाद जो आता है ना वो आपकी इनिशियल वैल्यू होती है। यहाँ पे देन के बाद है 150 बिकॉज दैट इज ए सैलरी। ओके डन। कुछ डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूलाज, इसको आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से भी कनेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, क्या लिखा है उसने, एज सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी। सो 50% मोर यानी कि क्या हुआ 1.5, या लिख सकता हूँ 3/2 बी। ठीक है, अब मान लो मुझे बी को इक्वेशन बनाना है ना, सो आई विल राइट बी इक्वल्स टू 2/3 ए। व्हाट डज 2/3 शो, 0.66 a, b equals to, so b is equals to 0.66 a का मतलब हुआ b is 33.33% less than a, b is 33.33% less than a। ठीक है, एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, लिख लेना। शॉर्टकट फॉर्मूलाज मैं नॉर्मली पसंद करता नहीं हूं इतने ज्यादा, क्योंकि इससे डायरेक्ट सॉल्व होने वाले क्वेश्चन आपको अच्छी एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बुक्स में दिए होते हैं तो मुझे पढ़ाना पड़ता है। देख लो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, लिख लो, और उससे सॉल्व भी किया है मैंने। परसेंटेज लेस या परसेंटेज मोर जब ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है तो यू जस्ट हैव टू राइट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस आर और परसेंटेज अपॉन 100 माइनस आर। यहाँ पे पूछा है लेस, सो लेस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस आर। यहाँ आर क्या है, द ओनली परसेंटेज गिवन इन द एग्जाम्पल, दैट इज 50। तो 50 upon 150 that is 33.33। लिख लेना the same way I have written here। राइट, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, ओके, देयर इज अ स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स। बेटा ए, ये जो लिखा है ना ये पढ़ो, A's salary is 50% more than B, so A's salary is 50% more, 50% more is 1.5 or we can say 3/2, सही है ना। so A is 3/2 B, तो B क्या होगा फिर 2/3 A। अब समझ आया ना ध्रुव, इज इट क्लियर नाउ। ऑलराइट बेटा, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, अब डायरेक्ट आंसर दो फटाफट, चलो क्या आंसर आएगा।
वेरी गुड, सबका आंसर सही है। ए स्कोर्ड 20% लेस देन बी, सो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 20, लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा ए का सैलरी, दैट इज 20/80, दैट इज 25%। शॉर्टकट से भी यूज करेंगे तो 20/80 आ जाएगा, तो आंसर विल बी 25%। यार कुछ लोगों ने मुझे गलत आंसर दे रखा है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आपका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। ठीक है, अगर आपने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से ट्राई किया है तो इट वुड हैव बीन लाइक दिस, a is 20% less, that is 8, 0.8, ultimately 0.8 b, so b equals to, or this 0.8 can be written as 8/10 or 4/5, so b is equals to 5/4a, है ना? So 5/4 is 1.25 and 1.25 shows 25%। बहुत इजी है ना? चलिए, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम हियर, फर्दर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ना थोड़ा फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, इसलिए पहले उसको हम समझते हैं, ध्यान देना। अच्छा बात सुन लो, पहले मैं जो कह रहा हूं वो मान लो, मैं ऐसा कहता हूं कि इंडिया में पेट्रोल का प्राइस अक्रॉस इंडिया मान लेते हैं हम लोग 50 रुपए है, 50 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन वी आर अज्यूमिंग 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का प्राइस है, और माय फादर गिव्स मी ₹100 पेट्रोल भराने के लिए। तो हाउ मेनी लीटर्स आई विल एबल टू कंज्यूम? 2 लीटर्स, सिंपल। ठीक है, 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का प्राइस है, मेरे पापा मुझे 100 रुपए देते हैं पेट्रोल भराने के लिए, तो मैं 2 लीटर कंज्यूम कर पाऊंगा। नाउ द सिनेरियो चेंजेस लाइक दिस, पेट्रोल का जो प्राइस है, ठीक है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो जाता है। पेट्रोल का प्राइस 20% इंक्रीज हो जाता है, लेकिन मेरे पापा मुझे फिर से 100 ही रुपए देते हैं, तो मेरा कंजप्शन जो है वो कितने परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा मुझे? सिंपल क्वेश्चन है ना। 20% आएगा, नहीं आएगा? प्राइस 20% इंक्रीज हुआ तो कंजप्शन कितना डिक्रीज होगा? 20 का 20, बिकॉज आई हैव टू कीप माई एक्सपेंडिचर सेम, I have to keep my expenditure same, that is 100 rupees only. So what will be my answer? Is it 20% only or something else? Right, so अब देखो, ठीक है, डोंट आंसर मी, स्टॉप कैलकुलेटिंग। ये सिर्फ मैंने आपको एक सिनारियो समझाया, उसको टेक्निकल टर्म्स में किस तरह से पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया गया है। इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी is increased by 20%, then by what percentage consumption must be reduced to keep the expenditure same? है ना, ये पूरा सिनारियो ही मैंने आपको समझाया है। If price of the commodity is increased by 20%, then by what percentage consumption must be reduced to keep expenditure same? क्या आंसर आएगा बताओ?
हाँ, good. So few answers I have received. Very good. हाँ, good. So so हमने पहले तो रिलेशन समझना है का एक्सपेंडिचर प्राइस और कंजप्शन के बीच का रिलेशन क्या है. एवरीवन फोकस ऑन द पीपीटी नाउ प्लीज. स्टॉप राइटिंग एंड कैलकुलेटिंग. ठीक है, देखो एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया 100 रुपए, प्राइस मैंने आपको बताई 50 रुपए, कंजप्शन बताया 2 लीटर. So 50 into 2 is equals to 100. So this is the correct relation that I have shown you. Expenditure is equals to price into consumption. अब ध्यान देना, ये हमारा फर्स्ट सिनारियो है. ठीक है, हमने क्या अज्यूम किया है केस 1 में, प्राइस 100 रुपीज, कंजप्शन 100, एक्सपेंडिचर 100 into 100. ध्यान देना, वो 50 100 भूल जाओ. मैं सिंपल आपको पूछ रहा हूं, प्राइस 100, कंजप्शन 100, एक्सपेंडिचर 100 into 100. नाउ केस 2 में क्या हो रहा है, आपकी प्राइस 20% इंक्रीज हो रही है. सो योर प्राइस बिकम्स 120, कंजप्शन आपको ढूंढना है, बट यू हैव टू कीप एक्सपेंडिचर सेम. What was your expenditure initially? 100 into 100. That you have to keep same. So ultimately you will have to find something like this. 100 into 100, that is same expenditure, is equals to price, which is now 120, into consumption that we have to find. So while solving it, we get 83.33. Now focus. In the initial part, what was our consumption? 100. But now due to increase in price, now what is our consumption? 83.33. What does it show? A decrease of 16.66%. Excellent. Many of you gave me correct answer. A decrease of 16.66%. Surprisingly, this question could also have been solved by the shortcut as shown in front of you. Right. So just to eliminate any confusion here, sorry, just to eliminate any confusion here, I explain one more time. ध्यान देना, price 100, consumption 100. This is something that we are assuming initially. So हमारा expense कितना हो जाएगा? 100 into 100. यश, now clear? हमने assume किया है ना price और consumption दोनों को 100 and 100. ठीक है? Now price is increased by 20%. So your price 100 में से बन जाती है 120. ठीक है, कंजप्शन आपको पता लगाना है, लेकिन एक्सपेंडिचर तो उतना का उतना ही रखना है, that is 100 into 100. So you find your consumption, which comes out as 83.33, and it clearly shows a decrease of 16.66% in the consumption. Rushikesh, clear ना? Good. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई थिंक दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन. ये इस तरह का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद विल सी द डिफरेंट पार्ट. बताओ क्या आंसर आएगा. हाँ, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो स्नेह. whatever you can assume, whatever you want to assume you can, but the answer would remain same, it won't change.
if the length of a rectangle is decreased by 10%, then by what percentage width must be increased not to change the area? हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना. आई थिंक यार, अगेन इफ आई अज्यूम इन द सिमिलर मैनर, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ. ध्यान दो, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ. ठीक है. नाउ रादर देन शोइंग यू द टाइप्ड वर्जन, आई विल शो यू बाय माय ओन हैंडराइटिंग. हम ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियल लेवल पे लेंथ इज 100, विड्थ इज आल्सो 100. देखो, मैं यहाँ 100 अज्यूम कर रहा हूँ, आपको जो चाहे अज्यूम कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. सो आपका एरिया क्या हो जाएगा? 100 into 100. Now the second case, if the length of rectangle is decreased by 10%, so this is your length, this is your width. Length is decreased by 10%, that becomes 90. Width आपको ढूंढनी है, keeping in mind that area should be same, that is 100 into 100. So if you find here width, it is 111.11. This is your new width. What was your old width? 100. Now it is 111.11. What is a clear increase of 11.11%? A clear increase of 11.11%. 9.09 कैसे आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों का? क्या गलती कर रहे हो? तो शॉर्टकट में आपने परसेंटेज डिक्रीज वाला फॉर्मूला यूज कर लिया ध्रुव. परसेंटेज इंक्रीज वाला फॉर्मूला यूज करना था. अगर आप शॉर्टकट भी यूज करते हो, ये परसेंटेज विड्थ मस्ट बी इंक्रीज्ड पूछा है ना. Right, is my voice clear now? I think it was disturbed. अब सही आ रहा है मेरी आवाज बेटा? राइट. सो हमने जो पिछले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस दैट वी सॉल्व्ड, है ना, वो चारों क्वेश्चंस का अगर हम समरी बनाते हैं तो समरी में कुछ ऐसा है कि हमने चारों क्वेश्चंस शॉर्टकट से भी यूज कर लिए थे और हमने सारे अज्यूम करके भी सॉल्व किए. अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हमने जो किया वैसा क्यों हो रहा था, व्हाई इट वाज हैपनिंग. सो ध्यान दे 1 मिनट के लिए. पहले क्वेश्चन का आप आंसर देखो 1 मिनट के लिए. एवरीवन डू एज आई से. जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना कि एज सैलरी इज 50% मोर देन बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज बी सैलरी वुड बी लेस देन ए. सो वो फर्स्ट क्वेश्चन था. हमने जो किया, उस पेज पे एक हाथ रखो और दूसरा हाथ हमने जो कल एक टेबल लिखा होगा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 परसेंटेज टू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट वाला, उस पे हाथ लेके जाओ. कम ऑन एवरीवन, डू इट एज आई से. ठीक है. So keep your one hand on the first example that we did today and one hand on the table that we wrote yesterday. So now पहला क्वेश्चन था 50% मोर और लेस पूछा था आपको. उस टेबल में 50 के नीचे क्या है?
उस टेबल में 50 के नीचे क्या है 33.33 एंड दैट्स योर आंसर. नाउ फोकस ऑन सेकंड क्वेश्चन. ए स्कोर्ड 20% लेस और मोर पूछा था. मोर मतलब ऊपर. उस टेबल में 20 के ऊपर क्या है 25. That's your answer. Again, third question was price of commodity increased by 20%. By what percentage should be decreased? तो 20 के नीचे क्या है टेबल में 16.66 and that is your answer. Same, the last question. Width must be increased. Increase मतलब ऊपर. 10 के ऊपर क्या है 11.11 and that's your answer. Do you understand what I'm saying? समझ आया? Have you observed the things that I'm saying? Did you understand? Kindly reply me with yes or no. है ना? तो आपका आंसर उस टेबल में से ही मिल रहा है. तो कब से हम ये सब सॉल्व क्यों कर रहे थे? Why we were doing it? है ना? सर इतनी मेहनत आधे घंटे से हम 4 क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं ना, हम कर ही क्यों रहे थे? बेसिकली तो सब कुछ टेबल में से मिल रहा है. सो मैं आपको वो भी बताता हूं कि हम क्यों सॉल्व कर रहे थे. मैं आपको वो भी बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि टेबल में ऊपर नीचे ही क्यों हो रहा है ना? आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी. ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि नाउ फोकस, ध्यान देना, दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट. एनी रिलेशन of the form z is equals to x into y, yani any one variable equal to product of two variables. Any variable equal to product of two variables can be solved this way. But why it can be solved this way? ध्यान देते हैं हम लोग. हम उसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ. ठीक है, जो हमने लास्ट एग्जांपल सॉल्व किया. कैन आई सिंपली राइट वन एरिया इज इक्वल्स टू वन लेंथ इनटू वन विड्थ? यस, वन तो कॉमन मल्टीप्लायर होगा ना, कॉमन कोएफिशिएंट हो सकता है सबका. नाउ इफ आई से दैट length is decreased by 25%, what is length right now? It is 1. It is decreased by 25%. 25 is 1 by 4. Focus करना सब लोग. This is 25%. So your new length becomes 3 by 4. 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4. Now focus. The area is to be kept same, that is 1a ka 1a. Your 1l has become 3 by 4l. What do you expect as coefficient of w now to keep your area as it is? यहां क्या आएगा? Come on, reply me, everyone. What do you expect? क्या आएगा ताकि वो 1a का 1a रहे? Everyone should reply. Excellent बेटा, very good, है ना? अच्छा, कुछ लोगों ने शायद गलत दिया है, बाकी most of you people have answered me correctly. That is, sir, definitely वहां पे 4/3 आएगा, तभी जाके तो 4/4 3 कैंसिल होगा, है ना? तो now you focus. 4/3 का मतलब क्या हुआ? The width was initially 1, now it has become 4/3. What is the increment? 1 plus 1/3. 1/3 का इंक्रीमेंट. 1/3 इंडिकेट 33.33. लुक हियर, यहाँ 25 था, यहाँ 33.33 आया. Why? It was 1/4, then this must be 1/3. इसी रीजन के कारण आपका आंसर इधर ऊपर आता है या नीचे आता है. इफ इट इज इंक्रीज वो ऊपर जाएगा टेबल में, इफ इट इज डिक्रीज वो टेबल में नीचे आएगा. इज इट क्लियर नाउ? यस और नो? कम ऑन क्विकली. है ना? वेरी गुड, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ. ये मैं सारी बैचेस में नहीं पढ़ाता यार, क्योंकि इंजीनियर्स वाली बैचेस में ही मैं पढ़ाता हूँ, बिकॉज इट इज लिटिल क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड. आई रिपीट इट, डोंट वरी. ठीक है, अगेन देखो यहाँ पे सबको मैंने 1 अज्यूम किया हुआ है. समथिंग आई एम डिक्रीजिंग बाय 25%, so 1 minus 1/4, it becomes 3/4. So now the length become 3/4, but area has to be kept same, है ना? एग्जाम्पल में क्लियर लिखा होता है कि एरिया को सेम रखना है. सो हमने 1a का 1a रखना है.
सो जब लेंथ 3/4 L हो गई है तो W क्या करना पड़ेगा, हमें 4/3 करना पड़ेगा ना, ताकि ये सब कैंसिल हो जाए। लेकिन W हमने अज्यूम कितना किया था, 1 से हो गया 4/3। व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन W? 4/3 which was initially 1, so your increment is 1/3. By what factor you decreased it? 1/4. By what factor you have to increase it? 1/3. 1/3 is 33.33. समझ आ गया पूजन? Yes? चलिए, सो नाउ ये सारे चीजें हैं जिसमें ये सारी चीजें आप अप्लाई कर सकते हो और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। तीनों इक्वेशंस लिख लो और ये जो फंडा है वो भी लिख लो बेटा। आई एम गिविंग यू 40 सेकेंड्स। इसके बाद we'll get into our last part of our class and last part of percentage as well. Very important part that also. हाँ, नाइस क्वेश्चन ध्रुव। चलो आप लोग लिख रहे हो ना, तब तक मैं आपको वो जस्टिफिकेशन भी दे देता हूँ कि सर अगर टेबल में ऊपर नीचे करने से ही आंसर आता है तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं अज्यूम करने की। देखो बेटा, टेबल में ऊपर नीचे करने से आंसर तभी आएंगे ना जब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, तो एरिया को सेम रखना है, बट एरिया टू बी केप्ट 1A, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपका क्वेश्चन ये पूछ लेता कि इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 30%, टेबल में है कहीं पे 30%? डू यू फाइंड एनीथिंग इन टेबल गिवन एज 30%? नहीं है ना, यू डोंट हैव एनीवेयर। तो फिर क्या करोगे, अब कहां ऊपर नीचे ढूंढने जाओगे? दिस इज द रीजन दैट यू हैव टू नो द रूट मेथड, बेसिक मेथड, है ना। दूसरी चीज, फिर तो सर हम वो शॉर्टकट यूज कर लेंगे, R/100 प्लस आर या R/100 माइनस आर वाला, फिर भी हो जाएगा। चलो मैं और डिफिकल्ट कर देता हूं क्वेश्चन को। इफ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 30%, by what percentage length should be increased to make area double? To make area double. अब क्या करोगे? अब ना आपका शॉर्टकट चलेगा ना आपका टेबल वाला मेथड चलेगा। यू विल हैव टू यूज योर बेसिक एंड रूट मेथड। सो जहां पे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा ना बेटा, तब आपका फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोई भी शॉर्टकट काम नहीं आता उस वक्त। शॉर्टकट पता होना जरूरी है, लेकिन उसे अप्लाई करना आई थिंक एग्जाम में कहीं पे होगा यूज इसका, ठीक है, होना जरूरी होता है। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ प्रिटी क्लियर हियर। चलिए, नाउ दिस इज द लास्ट फंडा ऑफ परसेंटेज। ध्यान देते हैं, just a moment, I think it will get clear. Yes, just a moment. Now is it clear still, or still the issue is there? Now it's clear, right? Thank you. Okay, so now this is the last part of our exam, last part of our percentage stuff, लेकिन it's important, ध्यान देता है। मैं एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं ना, तो उसके ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा हमारा फंडा। Sachin, Virat and Prithvi works in a same company and has the same salary, that is 20,000 rupees. Looking at their performances, Sachin is given 40% increment, Virat is given 2 increments of 20% and again 20%, whereas Prithvi is given 4 increments of 10, 10, 10, 10. After all increments, मुझे पहले आप ये बताओ, क्या तीनों की सैलरी सेम होगी? Will the salary be all three be same or no?
ऑफ कोर्स नो सर, नहीं होगी ना, इसी को तो हम क्या कहेंगे, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आपको ऐसा लग रहा है सबका 40% इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। सो यहाँ पे आपको मुझे 5 चीजें बतानी होगी। सचिन का सैलरी, विराट का सैलरी और पृथ्वी का सैलरी, 3 चीजें तो ये हो गई, और विराट और पृथ्वी का परसेंटेज इंक्रीमेंट भी आपको मुझे बताना होगा। तो टोटल 5 आंसर आपको मुझे देने हैं। इफ पॉसिबल गिव मी ऑल 5 आंसर इन सिंगल मैसेज। ऐसे एक आंसर दिया फिर एंटर मारा, दूसरे आंसर के बाद एंटर लगाया, ऐसे मत करना, ठीक है। पांचों आंसर एक ही मैसेज में लिख के देना, so that I can understand. अच्छा भगीरथ, you have to tell me the exact percentage change of विराट and पृथ्वी, as if सचिन का 40 है तो विराट का कितना इंक्रीज हुआ, पृथ्वी का कितना इंक्रीज हुआ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बाकी आपके आंसर सही लग रहा है बेटा मुझे। गुड, वेरी गुड। आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो द परसेंटेज चेंजेस। बहुत से लोग मुझे सिर्फ नई सैलरीज बता रहे हैं, परसेंटेज चेंज भी आपको बताना होगा साथ में।
गुड। सो आप सबने कहीं ना कहीं परसेंट सैलरीज तो फाइंड कर ली है, सो शायद वो तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं। सो if I use multiplication factor, and that you should also be using up to an extent, that is, look here, focus. Sachin का सैलरी 20,000, इंक्रीमेंट ऑफ 40%, तो सीधा सीधा क्या मल्टीप्लाई हुआ 1.4। विराट का सैलरी 2 बार 20% इंक्रीज हो रहा है ना, सो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा 1.2 2 टाइम्स। देखो यहाँ पे सबसे कॉमन गलती होती है 1.2 इंटू 2, ये गलत है। You have to increase it 1.2 and 1.2 like, है ना। सो ये सैलरी आप ढूंढ के उसको 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा हम क्यों करेंगे? हमें इंटरमीडिएट वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा सीधा 1.2 दो बार मल्टीप्लाई कर लूंगा, एंड दैट विल गिव मी 1.44, सो दैट इज 28800, दैट इज 28,800। आपने जिस तरह से भी सॉल्व किया है, आप ये देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ आएगा बेटा, ठीक है, ध्यान देना। अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो 1.14 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज अल्टीमेटली 1.1 पावर 4, दिस इज बेसिकली 1.1 पावर 4, 1.4641। if that I multiply with 20,000, I'll get 29,282, राइट। सो ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आपको कैलकुलेशन में आपने इंटरमीडिएट सैलरीज अगर ढूंढी है तो आपको डिफिकल्ट लगा होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। Now, just to think about percentage increase, ध्यान देना, how does multiplication factor helps us? Focus करना, how does multiplication factor helps us? यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है ना कि सचिन का 40% है, इसलिए हमने यहाँ 1.4 डाला। लेकिन अब रिवर्स सोचो ना, विराट में अल्टीमेटली क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1.44। एवरीवन आंसर मी, what does 1.44 multiplication factor indicates? Multiplication factor of 1.44 indicates what? Exactly. So you don't actually have to find anything, वो आंसर आपके सामने है, 44% इंक्रीज। वैसे ही पृथ्वी का कितना इंक्रीज है बताओ जरा, आपके सामने है 46.41% increase, exactly. So this is the power of multiplication factor. This is the power of multiplication factor. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, आपके सामने आंसर अपने आप आ जाता है। Yes, clear everyone? Quickly, yes or no? Run. आई थिंक सो सैलरी तो सबकी आ गई थी, यस, और आंसर्स बहुत सारों ने मुझे पांचों के पांचों सही दिए हैं। सो अप्रिशिएटेड बेटा एवरीवन, जिन्होंने ऑल 5 आंसर्स मुझे सही दिए हैं। करीब 4-5 लोग थे वैसे जिन्होंने पांचों के पांचों आंसर सही। हाँ, डेफिनेटली आप परसेंटेज इंक्रीमेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आई थिंक दिस इज मोर वायबल सोल्यूशन, स्नेह, है ना। ठीक है, अच्छा, नाउ परसेंटेज इंक्रीज या जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है ना, उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। एवरीवन फोकस हियर। मान लो मैं कोई एक वैल्यू है x, उसको मैं 20% इंक्रीज करता हूं और फिर 10% डिक्रीज करता हूं। सो अल्टीमेटली x में कितना परसेंटेज चेंज आएगा? If I increase x by 20% and then decrease by 10%, so will it be 10%? Is it correct? Will it be 10%? Yes or no? Yeah, exactly, it is wrong. Very good. हमेशा याद रखना कि वो गलत है। So उसमें कितना चेंज आएगा वो ढूंढने के लिए you can use successive percentage change का फॉर्मूला। फोकस करना everyone, that is plus or minus a plus or minus b plus or minus ab upon 100। लास्ट थिंग फॉर द टुडेज लेक्चर, लेकिन ध्यान से देखना,
प्लस फॉर इंक्रीज ऑफ कोर्स एंड माइनस फॉर डिक्रीज। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, 20 इंक्रीज कर रहे हैं, ध्यान देना। सो आई विल राइट प्लस 20। फिर हम क्या कर रहे हैं, 10 डिक्रीज कर रहे हैं, सो आई विल राइट माइनस 10। then it is ab upon 100 plus 20 minus 10 plus in plus and minus मतलब minus 20 into 10 200 upon 100 that will give us plus 8. So ultimately the change will be 8% increase and not 10. It will be only 8% increase. So this is the formula that you have to understand, but this formula can only be used when there are two changes. अगर दो की जगह, जैसे पृथ्वी में हो रहे थे 4 चेंजेस, तो पृथ्वी वाला आप इससे सॉल्व नहीं कर सकते थे, लेकिन विराट वाला इससे आप सॉल्व कर सकते थे। विराट वाला कैसे सॉल्व होता, ध्यान देते हैं फिर से। प्लस 20 प्लस 20 प्लस 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 20 इंटू 20 400 अपॉन 100, so that will give us plus 44, है ना। विराट का 44% आ रहा था ना। so this is also one more formula to use, वो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। डन। अच्छा, यही की यही चीज आप सक्सेसिव फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हो, या आप मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से कर सकते हो। x इंक्रीज्ड बाय 20 डिक्रीज्ड बाय 10, तो कौन से mf मल्टीप्लाई करोगे बताओ जरा। कम ऑन एवरीवन, x इंटू 1.2 इंटू 0.9, 12 9s are 108, so 1.08 into x, what does this show? What does 1.08 show? 8% increase। वही तो भाई आ रहा था ना, ये फॉर्मूला लगा के भी तो यही आ रहा है ना। so this is the power of multiplication factor. am I clear with this? yes। फॉर्मूला आपके सामने है बेटा, कॉपी करना जरूरी है ना। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। सिर्फ मुझे पढ़ के ऐसे ऊपर से आंसर दो तो, कि किस स्टेट में कम आएगा पेट्रोल का प्राइस। क्वेश्चन पढ़ो तो पता चलेगा। आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, यू डोंट हैव टू सॉल्व इट राइट नाउ, लेकिन ऊपर से आंसर दो मुझे जरा। पेट्रोल प्राइस इन स्टेट ए एंड बी आर सेम, लेट्स से स्टेट ए रिड्यूस इट बाय 20%, लेकिन स्टेट बी सक्सेसिवली रिड्यूसेस 2 टाइम्स बाय 10% एंड 10%। तो कौन से स्टेट में प्राइस कम होगा, ए या बी में, आफ्टर रिडक्शन? ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने से क्या लगता है आपको, आफ्टर रिडक्शन कौन से स्टेट में प्राइस कम होगा? सो 85 to 90% पीपल आर सेइंग कि सर ऑफ कोर्स बी में कम होगा, है ना, जो कि रॉन्ग है, ए में कम होगा। कोई बात नहीं, वो आप होमवर्क में सॉल्व करना बेटा, ठीक है। चलिए, दिस क्लास वाज रियली इंपॉर्टेंट फॉर परसेंटेज स्टफ। आई होप यू एंजॉयड इट। शायद आपको नई चीजें सीखने मिली होगी। बेटा रिवाइज करते रहना, रिवीजन करते रहना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज के किसी भी एग्जाम्पल में किसी को डाउट है तो आप स्टे बैक कर सकते हैं बेटा। अदरवाइज गुड नाइट, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। गुड नाइट बेटा। यस, थैंक यू, गुड नाइट। Yes, any doubt you can ask me, of course. अच्छा, so Nihar, that's a fair question. Yes, I will do it, तीर्थ, ठीक है। तो आपको ना बेसिकली आप आपको यहाँ जहां से इसकी लिंक मिलती है ना, इस लेक्चर की जो लिंक मिलती है, उस लिंक पे मैं जो अपना ये जो आज का पीडीएफ है जिसपे से मैं पढ़ा रहा था ना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, पहली चीज, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आपको पहले रिवाइज करना है। इसके पीछे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो वो आपको पहले सॉल्व करने हैं, ठीक है। वो सॉल्व बहुत सारे, यानी कि 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा नहीं। अच्छा, वो सॉल्व करने के बाद यू विल हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग।
सो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है aspiration.ai। aspiration.ai ये वेबसाइट है। दिस इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर प्रैक्टिस। आपकी कोई भी एग्जाम, मोस्ट प्रोबेबली अब सारी एग्जाम्स ऑनलाइन हो चुकी, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सारी एग्जाम की प्रैक्टिस आप ऑनलाइन ही करें। तो aspiration.ai पे आपको हर अलग तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल, इजी लेवल, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू गाइस। इसके अलावा अगर हम पीपीटी या पीडीएफ की बात करते हो तो इफ पॉसिबल अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैनेजमेंट आपको शेयर करेगा। आई लेट देम नो कि वो आपको शेयर कर दे। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रैक्टिस, राइट। अच्छा, तो इस प्लेटफॉर्म पे आप कैसे प्रैक्टिस करोगे उसके लिए मैं आपको कह देता हूं कि आप ना आपको जहां से ये आईडी मिलता है ना आपके लेक्चर का, अलग अलग जगह से मिलता होगा बेटा आपको आईडी। तो वो लेक्चर जहां से मिलता है उन्हीं के पास, दैट इज योर मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट के पास आप ना आज की पीडीएफ भी मांग लेना और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मांग लेना, वो आपको दोनों दे देंगे। और aspiration.ai का आईडी पासवर्ड भी मांग लेना, दैट दे विल हेल्प यू इन गिविंग यू दिस आईडी एंड पासवर्ड फॉर दिस aspiration.ai। ठीक है। नहीं, उसमें सब फोल्डर्स होंगे, उसमें टॉपिक टेस्ट भी है। गुड बुक फॉर पीडीएफ आप आर एस अग्रवाल जा सकते हो बेटा। आर एस अग्रवाल में ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, बेसिक से चालू करेगा और वो डिफिकल्ट तक आपको देगा। ठीक है। हाँ, तो एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना, तो पूरा टॉपिक रिवाइज करो, उसके बाद आप ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाओ। तो बुक्स मैंने आर एस अग्रवाल बोला है, तो और प्रीवियस गेट क्वेश्चंस है या प्रीवियस एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करो, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। हाँ, शायद ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। यू आस्क अबाउट मैनेजमेंट, वो आपको उसकी लिंक देंगे बेटा। हाँ, हो जाएगा बेटा। परसेंटेजेस इफ यू गो थ्रू एस्पायरेशन यू विल इजीली फाइंड इट। या फिर आपको जो पीडीएफ शेयर करेंगे उसमें से भी आप सॉल्व कर सकते हो बेटा कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। ऑल राइट। वो बुक आप कौन सी लेते हो बेटा उस पर डिपेंड करता है। प्रशांत, आई थिंक देयर इज ऑलरेडी अ टेलीग्राम ग्रुप, सो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एप्टीट्यूड ढाबा। यू माइट हैव रिसीव्ड इट, मैंने नाम लिखा है, नेम ऑफ द एप्टीट्यूड ढाबा नाम का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप थोड़ा ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन वहां पे आपके ग्रुप स्पेसिफिक डिस्कशंस नहीं होंगे, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डाउट सॉल्विंग के लिए, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। सो दीज स्टूडेंट्स आर फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, आई होप सो, इसलिए इसका व्हाट्सएप ग्रुप बनना इज डिफिकल्ट। सो बेसिकली यू कैन आस्क ऑलवेज फ्रॉम योर मैनेजमेंट दैट सर मुझे ये पीपीटी दे दो या पीडीएफ दे दो, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू, बिकॉज आई विल बी प्रोवाइडिंग, डोंट वरी। डन, ऑल राइट। चलिए, सो लेट्स एंड दिस क्लास देन। गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू, गुड नाइट।